Hello everyone, this is Anis Alam with you all, and you all are watching my channel Anis Sir's Technology. As you all are aware about the present situation and circumstances, due to maintaining the social distances, offline classes are not possible till the next updated order passed by the government. So for utilizing the time, I have decided to take the online classes of the computer science. Any confusion and doubt will be clear online. So today is the first session. In a short moment of time, I will start the today's session. Okay, so just give me a moment. I'm just going to start the today's session. Okay. I just want to start my recording. Okay, this is the very first lecture of the first year. Understand? We will discuss about the curriculum of the course. Okay, first of all, this is the basically I'm after a very long time I'm interacting with you. So hope you all are fine, rocking and fighting with the circumstances. Okay, we all are fighting with the circumstances. Okay, see, there are two types of people are existing. मैं हर लेक्चर में ये बात कहता हूँ, there are two types of people. एक वो लोग होते हैं कि जो वेट करते हैं कि सारी चीजें लाइन अप होंगी, कॉलेजेस स्टार्ट होंगे, देन आई विल स्टार्ट माय स्टडी. एक वो हैं जो इस टाइम को, इस लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज करना चाहते हैं. दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज कि हम किसी तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें, एंड यू ऑल आर वन ऑफ देम. आप उनमें से हैं. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने आप को ऑनलाइन के कंपैटिबल कर लिया है, एंड दे आर अटेंडिंग ऑन द रेगुलर बेसिस ऑनलाइन क्लासेस. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. ठीक है, my class 12th batches, my high school batches are regularly attending the class. They have a very consistent approach in that. Okay, so we are not supposed to wait when the things will be settled down, then I will start study. No, हमको स्टडी अब स्टार्ट कर देनी है. पता नहीं कब चीजें जो है वो सेटल डाउन होंगी. Okay, now first of all I want to discuss the main course point in the first year. The very first chapter. Okay, first of all I want to discuss non-programmatic chapters जिनमें प्रोग्रामिंग नहीं है. ठीक है, 1 second please. Okay, non-programmatic chapters. The very first chapter is data representation. In the data representation we study about the number system. I'm just writing this course points in this course chapter. You don't worry about that. We will see every point in a very detailed manner. Okay, number systems. How many types of number system we will see? And after that we will see some conversions. Conversions का मतलब एक number system से हम दूसरे number system में how to convert it. Somebody want to ask a question? हाँ, yes. Binary, decimal, octal, hexa, and we will also see binary addition, binary multiplication, division. Okay, then after that we will see one's complement, two's complement, and 8's complement, and 16 complements. In this chapter we will. Okay, ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में नहीं जाएगा. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ईयर और क्लास 11. ये क्लास 12 में चैप्टर नहीं जाता. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा. It is a very important chapter or unit. This is also a non-programmatic section. Okay, Boolean algebra में we basically studied about gates, truth table. Okay, one more thing I want to discuss during the session, that 40-minute slot is available in the Zoom application. After the 40 minute your session will be automatically ended. मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, हमारे पास वार्निंग मैसेजेस आते हैं, उसके बाद आपको रीज्वाइन करना है.
द रीज्वाइन विल बी डन बाय द सेम क्रेडेंशियल, यूजर आईडी पासवर्ड आपके वही रहेंगे जो अभी अभी आपने ज्वाइन किया है, बस 1 सेकंड का ब्रेक होगा या हार्डली 4 to 5 सेकंड, और उसके बाद हमारे क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? गेट्स ट्रुथ टेबल, ठीक है, एंड यूनिवर्सल गेट प्रूविंग, इसमें सारे हम सर्किट्स और गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एक मशीनरीज के अंदर कैसे करंट फ्लो होता है, या मदरबोर्ड होती है, उसमें मदरबोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड, उसमें जो सर्किट्स लगे होते हैं उन सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो करता है, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एक्चुअली, डोंट वरी। ओके, साथ में हम लोग अब अगर हम सेकेंड यूनिट्स कर लें, ये 2 यूनिट्स हो गए, इसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी वीक है, वैसे अभी हमारे पास काफी टाइम है और हाई स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, इफ योर प्रोग्रामिंग इज लिटिल बिट वीक, तो ये 2 चैप्टर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये 2 चैप्टर्स आपको काफी सपोर्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द ट्रुथ टेबल एंड यूनिवर्सल गेट, सम प्रूविंग आर आल्सो देयर, लाइक मॉडस स्पॉन एंड चेन रूल, ये सब हम बताएंगे आपको डिटेल में। ये सिर्फ नाम देखने में बड़े लग रहे हैं, बट दे आर वेरी वेरी इजी। ओके, अभी हमने आपको रिजल्ट शो किया था। ओके, प्रोग्रामिंग में वैसे तो सारी प्रोग्रामिंग है जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी है, लेकिन मेन एम्फसाइज किया गया है इसमें डबल डायमेंशन एरे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रैक्टिकल में एंड थ्योरी दोनों में पूछा जाता है। अंडरस्टैंड? सेकेंड, अगर हम बात करें आफ्टर द डबल डायमेंशन एरे, एक नई चीज जो हमको हाई स्कूल में नहीं मिली थी और फर्स्ट ईयर में मिल रही है, रिकर्जन। व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे रिकर्जन कहते हैं। आई एम जस्ट डिस्कसिंग इन अ वेरी लाइट मैनर, बट इट्स कंप्लीट अ चैप्टर इन इटसेल्फ, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की। स्ट्रिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको हाई स्कूल की स्ट्रिंग वीक है तो कोई बात नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जिससे आपकी स्ट्रिंग स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, डन। स्ट्रिंग के बाद एक और चैप्टर अगर हम बात कर लें, ऑब्जेक्ट पासिंग। फाइल हैंडलिंग लास्ट ईयर थी, लेकिन इस बार ये वायरस की वजह से, आपके कोरोना वायरस की वजह से कुछ चैप्टर्स आपके कोर्स में रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो फाइल हैंडलिंग हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर कोर्स, ठीक है। इस पर कमांड होने में थोड़ा टाइम भी लगता था। ये जो हमने हाईलाइट किया है रिकर्जन, ये हमारे कोर्स का थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है, लेकिन इस पर हमारी बहुत डिटेल्ड स्टडी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बस जिसमें टाइम लगेगा वो ये चैप्टर है, और थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर हमारा डबल डायमेंशन एरे होगा। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट पासिंग भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। बस ये 3 वो टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी कोर्स विल बी डन वेरी स्मूथली, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? हाँ, इसके बाद आपके पास थ्योरी रहेगी। थ्योरी के सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, बस आपको उनको समझाना है और आपको उनको पढ़ना है, ठीक है। द कंप्लीट फोल्डर इज क्रिएटेड, just 1 second please, just 1 second. I am only discussing the course right now, the class will be start in hardly 2 minutes. आप हमारी बात कर रही हैं कुछ? This is your first year, okay, all the conversions are there and some theoretical points are also there, okay, you don't worry about that, okay, papers are there, okay, so everything is prepared, okay. Now anybody want to ask any question? Sir, what about the theory part and theory part 2? Okay, okay, theory part 1 and theory part 2 will be used, okay, but only 80%. Understand? Because 20% theory will be included according to the first year syllabus, okay, so that will be used, okay, fine. Now जितने भी हमने आपको हाई स्कूल के अंदर नोट्स दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका यूज खत्म हो गया। उनका यूज तो आपके बीएससी और एमसीए तक खत्म नहीं होगा, बीटेक और एमटेक तक उनका यूज खत्म नहीं होगा। फिलहाल आप उनको सेकेंड ईयर तक तो रखें ही,
वो सारे नोट्स आपके कहीं ना कहीं पे यूज होंगे। अंडरस्टैंड? सबसे अच्छी न्यूज ये है कि लॉट ऑफ कॉलेजेस प्रोवाइड सम इंटरवेंशन इन द एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन। बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो एनुअल और फाइनल पेपर में अननेसेसरी इंटरवेंशंस करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, फ्रॉम द लास्ट ईयर द पेपर इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द काउंसिल साइड, और काउंसिल से जो भी पेपर आता है वो बहुत ही अच्छा डिजाइन होके आता है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बोर्ड के पेपर्स हैं अब वो आईसीएससी काउंसिल से डिसाइड होके आएगा। सो दे प्रोवाइड्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी सिस्टमेटिक पेपर। आपने अभी देखा है कि हमारे स्टूडेंट के मार्क्स कैसे आए हैं। तो ज्यादातर के मार्क्स जो हैं वो 1-2 नंबर सिर्फ कम आए थे, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया था और हमने सब कुछ कवर किया था। सो यू डोंट वरी अबाउट द फाइनल एग्जामिनेशन पेपर फ्रेमिंग। इस बार काउंसिल अपने आप अकॉर्डिंगली काउंसिल पेपर सेट हो रहा है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। नाउ व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स आई एम गोइंग टू यूज। नंबर 1 प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे, दिस इज द थियोरिटिकल। सेकेंड, अगर हमको कुछ डिजाइंस करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे दिस इज माई स्मूथ ड्रॉ प्लेटफॉर्म। 70 मार्क्स का पेपर होगा। हाँ, एक चीज और बता दें, पेपर के मार्क्स देखो, स्टूडेंट आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड आई एम इमीडिएटली रिप्लाइंग। तो विप्रांश हैज आस्क्ड द क्वेश्चन दैट द पेपर विल बी 80 और 100 मार्क्स। पेपर डिवीजन, पेपर विल बी ऑफ 70 मार्क्स theory and paper will be of 30 marks practical. Last to last year or from the last 5 years जितने भी स्टूडेंट्स मैं ट्रेन कर रहा हूं उनको प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम आती नहीं। उनके प्रैक्टिकल जो होते हैं उनके एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपनी जो कोडिंग है उसको कंप्यूटर पर और लैपटॉप पे थोड़ा करते रहना है, ओके। अगर आप करते हैं तो प्रैक्टिकल में कोई इश्यू नहीं है, ओके। और प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज से ही डिसाइड होता है, ओके। नाउ दिस इज बेसिकली योर पेपर मार्क्स वेटेज, ओके। नाउ आई विल यूज द ब्लूजे डायरेक्टली। यहां पर आप देखिए द कंप्लीट स्क्रीन यू कैन सी, दिस इज द ब्लूजे। I will execute all the programs on the BlueJ and you will immediately get the result on screen. Okay, so you don't worry about that. Okay, now coming back, just 1 second. Okay, so now I think that we should start chapter number 1. Chapter number 1, इसको अगर हम सुमिता अरोड़ा की बुक से कंपेयर करें तो उसमें लिखा हुआ है डेटा रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। In which we study about the number systems. There are so many number systems are available. We will see one by one. Just 1 second. ठीक है, इससे पहले I want to write something. The whole data processing, ठीक है, to be performed, just 1 second, to be performed by the computer is based on number system. जितना भी डेटा प्रोसेस होता है एक कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर जितने भी डेटा को प्रोसेस करता है वो नंबर सिस्टम के बेस पे ही प्रोसेस करता है, ओके। सो टू हैव फेयर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग और कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ लें, तो इसके लिए जरूरी है कि हमको सारे नंबर सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन, सारे नंबर सिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं वो तो हम बताएंगे नहीं, बट व्हाई वी आर लर्निंग द नंबर सिस्टम वो बता रहे हैं, ताकि हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। यहां के बाद आपके करियर्स में चेंजेस आते हैं। आप हो सकता है मे बी कि आप एमसीए प्लान करें,
बीसीए प्लान करें, बीटेक प्लान करें, एमटेक प्लान करें, या कोई भी अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जाते हैं, ओके, तो धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे आपको उन सारी चीजों की नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। तो टू हैव फेयर नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, it is important to understand these number systems properly. इन नंबर सिस्टम को हमको प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम सबसे छोटे नंबर सिस्टम की बात करें, वो तो एक थ्योरी हो गई, अब हमको मेन समझना है। तो सबसे छोटा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट और कंटेन ओनली 2 digit 0 or 1. All the electronic devices, I am not talking about only computer, all the electronic devices are basically based on binary number system, and computer only understand the binary number system which is in the form of zeros or 1. Understand? So this is the binary number system which only contains 0 or 1. इसके बाद octal number system. Octal number system, octal का मतलब होता है 8. It consists of 8 numbers. It consists 8 numbers from, जब भी कोई नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है from 0 to 7. अगर हम 0 से 7 बात करें तो टोटल नंबर विल बी 8. तो ऑक्टल में जो नंबर्स हमारे आते हैं दे कम्स फ्रॉम 0 to 7. ओके, इसके बाद अगर हम थोड़े बड़े नंबर सिस्टम की बात करें, देन डेसिमल नंबर सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ 10 numbers from 0 to 9. अंडरस्टैंड? हमारे कोर्स में कुछ चीजें बहुत इजी होती हैं और कुछ चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो हमें सब पर कमांड करना है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद आता है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अंडरस्टैंड? हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ 16 numbers. 16 numbers. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 नंबर्स आते हैं। 0 से 9 तक तो एज यूजुअल होते हैं, जैसे कि और नंबर सिस्टम में होते हैं 0 to 9, लेकिन 10 को 10 ना लिखकर हेक्साडेसिमल में ए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ए। 11 को 11 ना लिख करके हम बी लिखते हैं, ठीक है। बी का मतलब है दिस इज द 11 ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 12 को 12 ना लिख करके हम सी लिखते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, मैं हर एक टॉपिक के बाद थोड़ा रुकूंगा। 13 को 13 ना लिख करके हम लिखेंगे डी, ओके। 14 को 14 ना लिख करके हम लिखेंगे ई, और लास्ट इज 15। अगर हम 0 से चल रहे हैं तो 0 to 15 टोटल नंबर विल बी 16, एंड 0 to 9 हमारे एज इट इज वैसे ही रहते हैं जैसे कि डेसिमल में है और अदर नंबर सिस्टम, लेकिन 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को हम सी से, 13 डी, एज सो ऑन। दिस इज एफ, ओके। फर्स्ट सेक्शन इज कंप्लीटेड, ओके। आराम से देखिए और बताइए, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, सो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। वी हैव ओनली डिस्कस्ड 1 2 3 4 नंबर सिस्टम्स। मैंने आपको बताया कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, एक ऑक्टल है, एक डेसिमल है और एक हेक्सा है। आई थिंक समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन, ओके। वन कंफ्यूजन एंड वन बिग क्वेश्चन मार्क इज देयर। सर आपने कहा कि ऑक्टल 0 से 7 होता है, डेसिमल 0 से 9 होता है, हेक्सा होता है 0 से 15, बट अगर मान लीजिए
हम 7 लिखते हैं सर, कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? तो 7 हमारा ऑक्टल की कैटेगरी में भी आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, डेसिमल की कैटेगरी में भी आ रहा है, और हेक्साडेसिमल की कैटेगरी में भी 7 है। तो ये 7 ऑक्टल का 7 है, डेसिमल का 7 है, कि हेक्सा का 7 है? दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क, दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क। हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि ये 7 किस नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिविल ड्रेस में, कलर ड्रेस में बैठे हुए हैं, इसमें लामार्ट्स के भी स्टूडेंट हैं, वहां भी हाई स्कूल होता है, एलपीएस के हैं, सीएमएस के हैं, वहां भी फर्स्ट ईयर हाई स्कूल होता है, और वहां पर भी क्लास 12 होता है। हाउ विल बी आइडेंटिफाइड इफ दे आर इन कलर यूनिफॉर्म? देयर माइट बी सम कंफ्यूजन ना। तो अब हम बताएंगे आपको कि हम कैसे इस 7 को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर दैट पर्पस वी यूज बेस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज लिख अगर देते होंगे किसी, तो बता रहे हैं, अगर किसी नंबर, अगर हमने किसी नंबर को लिखा और नीचे हमने 8 लिख दिया, जस्ट लाइक दैट, तो दैट मीन्स इट इज 100% कंफर्म्ड कि ये ऑक्टल का 7 है। कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? अगर मान लो कहीं पर लिखा है 14 और हमने ब्रैकेट में 10 लिख दिया, तो इसका मतलब है ये 14 डेसिमल का 14 है। अगर कहीं पर ये नंबर लिखा है मान लो 12 और हमने बेस में 16 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये 12 16 यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का है। सो बाय 14 तो सर 14 तो डेसिमल की रेंज में आता ही नहीं। 0 से 9 में कोई भी डिजिट अगर लिखी जाए तो वो डेसिमल कहलाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 14 तो सी, 14 अलग अलग डिजिट्स में बना हाँ, इसलिए। अलग अलग डिजिट्स में ही देखा जाएगा। अब यहां देखो ध्यान से, बहुत बड़ा नंबर हम लिख रहे हैं, बहुत, ये सब चीजें हमको क्लियर करना है, डोंट वरी। क्या ये ऑक्टल हो सकता है? यस सर, 100% हो सकता है, बिकॉज ईच एंड एवरी डिजिट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 7। 0 to 7। गुड। क्या ये ऑक्टल हो सकता है? नहीं सर, 8 आ इट्स गया। नॉट पॉसिबल, अंडरस्टैंड? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑक्टल में कोई भी डिजिट 7 से ऊपर नहीं जा सकती। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, अब देखो, यहां पर हमने एक नंबर लिखा 1 0 1 0 1 0। दिस नंबर इज बेसिकली द बाइनरी नंबर, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, अगर हम इतना कर दें तो यूनिट 10 100 1000, ये 1010 भी तो साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर, यस तो सर। ये नंबर हमारा डेसिमल की कैटेगरी में भी जा सकता है, ऑक्टल की कैटेगरी में भी जा सकता है, लेकिन अगर हम यहां पे 2 लिख दें, देन 100% इट विल बी कंसिडर इन द कैटेगरी ऑफ बाइनरी, इन द कैटेगरी ऑफ बाइनरी। तो ये जो नीचे हम लोग 2 16 10 8 8 और 8 लिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेस सिस्टम। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अ बेस सिस्टम। आपको ये लगाना नहीं होगा, ये आपको क्वेश्चन में लगकर मिलेगा, ठीक है? आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। सी, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस ड्रॉइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको सबको क्लियर कर रहा हूं। द ड्रॉइंग इज क्लियर। अब हम यहां आ जाते हैं। सी,
आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे मिलेगा मैं वो बताता हूं। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे मिलेगा, इस तरह से। डेसिमल टू बाइनरी। इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, दिस नंबर इज 100% कंफर्म्ड इन द डेसिमल एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। अंडरस्टैंड? तो ये बेस सिस्टम से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर किस में दिया है और नंबर हमें किस फॉर्म में ले जाना है। सो दिस इज बेसिकली योर सोर्स एंड दिस इज बेसिकली योर डेस्टिनेशन। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। वट एवर यू आर, जो स्टूडेंट मेरी बात को सुन रहे हैं, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड प्लीज डोंट फील एनी हेजिटेशन। आपके रिस्पॉन्स से ही हम आगे बढ़ते हैं, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड एट एवरी स्टेज। अब बेस सिस्टम के बाद थर्ड कैटेगरी आती है कन्वर्जन। 98% आपके क्वेश्चन इस चैप्टर के जो पूछे जाते हैं वो कन्वर्जन पे ही पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन? कन्वर्जन का मतलब होता है टू कन्वर्ट वन नंबर सिस्टम टू another नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना कन्वर्जन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल टू बाइनरी कैसे होगा उस पर हम बाद में आएंगे, पहले ही समझ लो कि मतलब क्या है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्साडेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्सा टू बाइनरी। ओके, आफ्टर द 4 minute you have to reconnect. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन? ओके, अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। पहले ये बताओ सर जब है, यस सर जब वो जो लेटर्स आपने बताए थे ए से लेके एफ तक, हाँ हाँ जब वो लिखते होंगे तो मतलब उसका तो डायरेक्टली मतलब है, तो उनमें तो सब्सक्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, उनको हम लिखेंगे। अभी जब हम ये वाला पार्ट करेंगे ना, तो हम आपको लिख कर बताएंगे कैसे लिखेंगे उनको। अगर मान लीजिए कि आप हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं और 10 आ गया, तो आप 10 को 10 ना लिख करके ए लिखेंगे, वो हम बताएंगे आपको। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, सब हम बताएंगे आपको। सर डेसिमल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिमल को, हाँ डेसिमल को मैंने नहीं बताया क्या? जस्ट बताया तो। डेसिमल को हम लोग बेस 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो डेसिमल का मतलब होता है 10। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, बाइनरी को रिप्रेजेंट करेंगे बेस 2 से, ऑक्टल को रिप्रेजेंट करेंगे बेस 8 से, डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे बेस 10 से, हेक्सा को रिप्रेजेंट करेंगे बेस 16 से। ये सारे बेसिस मैंने लिख दिए, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। बाइनरी मतलब 2 नंबर, ऑक्टल मतलब 8 नंबर, डेसिमल मतलब 10 नंबर, हेक्सा मतलब 16 नंबर। सर एडवांटेज क्या है बाकी सारे सिस्टम का? सर डेसिमल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैं डेसिमल ही बता रहा हूं कि बेस 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझने के लिए, जैसे बिल्डिंग के आर्किटेक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर्स होते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझने के लिए, कंप्यूटर किस तरह से बना है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी वर्किंग, उसके वर्किंग स्टाइल को समझने के लिए ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? तो जैसे जैसे हम आगे, एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सर्किट डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइनिंग, तो वहां पे इस चैप्टर को यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो दे आर प्रोवाइडिंग अ बेस एंड फाउंडेशन फॉर द हायर स्टडीज। प्लीज रीजॉइन, इट्स द टाइम टू रीजॉइन। आपको रीजॉइन करना है क्योंकि आई हैव अ वेरी लेस टाइम।
only the 30 to 40 second, so it's better you rejoin. So I am ending this meeting and you have to rejoin. कोई कहीं जाएगा नहीं, class is in continuation. 14 participants are there, please rejoin. I have just start the recording. So this is my first question. इसका मतलब ये है, पहला कन्वर्जन जो हम करने जा रहे हैं, my first conversion is, just 1 minute please. Just 1 minute. Decimal to binary. ओके सबसे पहला कन्वर्जन देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी. दिस इज माय डेसिमल नंबर बाय द बेस 10. हमने बेस 10 से आइडेंटिफाई करा है कि ये डेसिमल नंबर है. इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में. ये कैसे हमें पता चला कि हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है? क्योंकि जिसमें ले जा रहे हैं उसका बेस 2 है. तो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी? इट्स अ वेरी इजी. 20 और इस तरह से एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे. आई विल डू ऑल द कन्वर्जन इन फ्रंट ऑफ यू. 2 10s are 20, 2 10s are 20 and remainder is 0. Then 2 5s are 10, remainder is 0. 2 2s are 4, remainder is 1. 2 1s are 2, remainder is 0. 1 आने पर या 0 आने पर हम रुक जाते हैं. अब ये और आगे डिवाइड नहीं हो सकता. अब इसको लिखने का तरीका है बॉटम टू अप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखते हैं. तो कैसे लिखेंगे? 1 0 1 00 is the binary of 20. Do you understand the first conversion? Any problem? बस इस चैप्टर में ज्यादातर हमको यही करना है. ओके ज्यादातर इस चैप्टर में हमें यही करना है. अब एक बात बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से. अगर हम इसकी बात करें 1 0 1 00, दिस इज व्हाट? बाइनरी. सारे दिस इज द बाइनरी. अगर इस बाइनरी है ये, तो इसका डेसिमल क्या होगा? क्या होगा इसका डेसिमल? What will be the decimal of this binary? 20. अगर 20 का बाइनरी ये है, तो इसका डेसिमल भी 20 ही होगा. तो वी नीड टू क्रॉस चेक कि क्या इस बाइनरी का डेसिमल 20 होगा या नहीं होगा. तो इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. सो हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, वो भी देख लेते हैं. थोड़ा नीचे आते हैं. देखो, इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं. एक तरीका है, द फर्स्ट मेथड इज शॉर्ट हैंड मेथड या शॉर्टकट मेथड. इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड. ये हमारा फर्स्ट मेथड है. इसके लिए हम लिखते हैं 1 सेकेंड प्लीज. हमने लिखा 1 0 1 00. यही तो बाइनरी है. अब राइट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड है हमारा, यहां से हम नंबरिंग करेंगे. एंड आई विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम 1 का जस्ट डबल, 2 का जस्ट डबल, 4. सर ऐड कर देते हैं ना. 4 का जस्ट डबल, वेट 8 का जस्ट डबल. 3. अब जिनके नीचे
जिनके नीचे 1 आ रहा है उन नंबर्स को ऐड कर दो। तो 16 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है, तो 16 विल बी एडेड विथ 4। 20 सारी 2 की पावर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, एंड दिस इज व्हाट डेसिमल। आई एम जस्ट waiting for reply. Do you understand this? Not only one person. Do you Yes, understand this? Ammar, are you there? सर बोला तो यस सर, समझ गया। Do you understand this? यस सर। Very light things we are discussing, but I required your reply. Okay. Okay. Second method. राइटिंग हमारी भैया इस पे थोड़ा ऐसे ही आएगी, तो प्लीज कॉपरेट, ठीक है? प्लीज कॉपरेट। ओके, अब देखो, ध्यान से देखो, हमारा सेकंड मेथड है। ये जो फर्स्ट मेथड है, इससे हमारा आंसर तो निकल आता है, बट इन एग्जामिनेशन दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड। इस मेथड को हम अपनी चेकिंग के लिए रखते हैं। अब सेकंड मेथड हमारा है, उसके हिसाब से हमने नंबर को लिखा, जिस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, जिस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है उस नंबर को हमने लिखा। नाउ आई विल स्टार्ट माय नंबरिंग फ्रॉम 0। 0 यहां, 0 के बाद क्या आता है? 1। 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 के बाद 4। ऐसे हमने सारी डिजिट पे नंबरिंग कर ली। सेकंड मेथड हम देखने जा रहे हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा इसको हम नीचे कर रहे हैं। अब यहां से देखो ध्यान से, पहले हम लिखेंगे 2, क्योंकि नंबर हमारा किस में है? बाइनरी में है, तो हमने लिखा 2। 2 की पावर, अरे जो 1 मिनट, जो 1 के ऊपर नंबर है वो इस 2 की पावर हो जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय ये वाला नंबर, ये वाला नंबर जो भी है, ये 1 है तो हम 1 यहां लिखेंगे, प्लस अब फिर से 2 लिखेंगे। 2 हमारा फॉर्मूले का 2 है। अब इस 0 के ऊपर, इस 0 के ऊपर क्या पोजीशन क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला नंबर, दैट इज 0, प्लस 2 तो हमको हर एक में लिखना ही है, क्योंकि हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। अब सबसे पहले ये रेड वाला जो इसकी पोजीशन पे है, और मल्टीप्लाइड बाय ये ब्लैक वाला नंबर, अंडरस्टैंड? प्लस बाय मिस्टेक, 1 मिनट, किसी ने कुछ लिख दिया है, क्लियर। अब जस्ट 1 मिनट, यहां तक हमने कवर कर लिया ना? ठीक है, यहां तक कवर हो चुका है। अब लिखा हमने, 1 मिनट प्लीज, 2 की पावर, ये जो ऊपर की पोजीशन है वो यहां पर पावर हो रही है, मल्टीप्लाइड है ये वो नंबर जिसकी पावर है, वो वाला नंबर अब लिखा जाएगा, प्लस 2 और ये पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय जिस नंबर की पोजीशन है वो नंबर। नाउ डन, ओनली वी हैव टू कैलकुलेट। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 की पावर 4 is 16. 16 into 1 3 प्लस 2 की पावर 3 8 8 into 0 2 की पावर 2 4 4 into 1 4 4 2 की पावर 1 2 2 into 0 0 0 2 की पावर 0 कितनी होती है? 0 1 2 की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। 1 into 0। yes sir कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मैथ तो हमारी भी ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, कौनो दिक्कत नहीं। Thank you, sir. अब 16 और 4 को ऐड करो, व्हाट यू विल गेट? 20 20 द सेम आंसर इज कमिंग।
This is my second method. Yes, sir. This is my second method. You, my dear student, you are not supposed to do anything new. बस यही आपको करते रहना. Understand? अब देखो थोड़ा और ऊपर आते Yes, sir. This सर is my ग्रुप पे second कोई लिख method. रहा है उसकी आईडी एंटर नहीं हो रही. किसकी 1 minute. सर ग्रुप पे कोई लिख रहा है. नहीं, हो गई 1 minute. हो गई सर, हो गई। सर 17 पार्टिसिपेंट है, पहले 14 थे, ये क्या हो गया? एक्चुअली हमारे 18 पार्टिसिपेंट हैं, हमको मिला के 19. ठीक है, तो यानी 2 कम है. हाँ ठीक है, अब सब आएंगे धीरे धीरे. ठीक है, इतना समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज डोंट टॉक Yes, विथ sir. ईच अदर. प्लीज डोंट टॉक विथ ईच अदर. ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट Yes, sir. मैं इन सब चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा. वेरी गुड. नाउ अब जल्दी से, बहुत जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी. सी 26 base 10 converting into binary. Huh? 0 1 1 1 0. Please don't write here. ठीक है? Oh, 1 minute please. 1 1 0 ही आएगा ना सर? कॉपी पे करिए, कॉपी पे करना है आपको. 0 थोड़ा छोटा नहीं है? 26 base 10 into binary. 1 1 0 ही आ रहा है शायद. तो मेरा 110010 आ रहा है. एक मिनट देखो. जो लोग इस पे जो लिख रहे हैं ना, उनका नाम भी यहाँ आ जाता है. ठीक है? ओके, सी 26 divided by 2. अच्छा हाँ, सॉरी सर. 2 1s are 2, 2 3s are 6. मैंने 12 माइनस कर दिया. कोई बात नहीं, अभी हमको इसी मेथड से करना है. 2 6s are 12. Please maintain the silence. 2 3s are 6, 0. 2 1s are 2. 1 1 0 0 1. अब इसको बॉटम टू अप लिखेंगे तो आंसर आएगा 1 0 1, सॉरी 1 1 1 1 0 1. 1 1 0 1 0. This is what? Binary. Our answer. Now we need Answer to convert this binary into decimal. My question is change. 0 1 2. इसको कन्वर्ट करना है किसमें? 18 सर 26 आएगा. आना चाहिए, 60 आएगा. आना चाहिए. अब कन्वर्ट करने के लिए what we have to do, अब एक चीज यहां बताना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पूछी भी गई है कई बार एग्जाम में. What is this and what is this? Please concentrate on the screen. इसको हम लोग बोलते हैं LSB. Please don't talk. इसको बोलते हैं हम लोग LSB. मृदुल प्लीज डोंट टॉक. LSB. Yes, sir. LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोला जाता है MSB. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. This is called least significant bit and this is called the most significant bit. बीच की बिट bit वही को, वाला डेटा टाइप वाला बिट. हाँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अच्छा, अब हम लोग जब इसकी नंबरिंग करते हैं तो LSB से MSB की तरफ करते हैं. कैसे? हाउ?
मैं बताता हूं, ये हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। हो गया 0 1 2 3 4। अब हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूले का 2। अब 2 की पावर वही हो जाएगी जो इस नंबर की पोजीशन है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर, दैट इज 1, प्लस 2 इज द फॉर्मूला, 2 लिखना ही है, पोजीशन क्या है 3, मल्टीप्लाइड बाय नंबर क्या है 1, 2 की पावर पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर इज 0। प्लीज डोंट राइट ऑन स्क्रीन। 2, अब हमने 1 1 0 तो देख लिया, अब ये 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस लास्ट इज 2 की पावर 0 इंटू 0। इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पर प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ लिया तो आपको प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी। ओके, अब देखो 2 की पावर 4 इंटू 1 16 प्लस 2 की पावर 3 8 इंटू 1, 2 की पावर 2 4 4 इंटू 0, 0 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 0 1 1 इंटू 0 0। Now you have to calculate 16 plus 8 plus 2 is equal to 20 26 is equal to 26 base 10. 10 Clear? This is clear to all of you? This is clear to all of you? Can you please reply? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, very good. Excellent. Rudrakshi. Okay. Thank you, sir. Now, can we go to the next level? क्या हम Yes, sir. एक लेवल आगे जा सकते हैं? ठीक। Yes, sir. अराउंड 60 मिनट की क्लास हम लेकर चल रहे हैं। 60 मिनट की क्लास हम लेकर चल रहे हैं। ओके, तो अभी कुछ थोड़ा सा बात में, अभी बस 5 मिनट और लेंगे, नॉट मोर देन दैट, 5-10 मिनट और लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली। व्हाट वी हैव कवर्ड इन द कन्वर्जन, दिस इज माय थियोरेटिकल सेक्शन। इन द कन्वर्जन we have seen decimal to binary and binary to decimal. Sir, we need some question for practice. Sir, we'll discuss doubt session after this class. Yes, yes. If you have any doubt, Vipransh, you can discuss along with the problem, or you can discuss after the class. Whatever you think in which you are convenient, you can. I don't think कि अभी जितना पढ़ाया है उसमें कोई डाउट होगा। अगर आपको है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये आपके प्रैक्टिस की शीट है। कैन यू प्लीज टेल एवरीबडी, ये वो चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पे पूछा जाएगा। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैप्टर। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? सर, विल यू टेक द, ओके, नो प्रॉब्लम विप्राज, आई विल डिस्कस। सी, ध्यान से देखना, ये डेसिमल है, तुमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने आंसर ऑलरेडी दे रखा है। जब तुम अपना आंसर निकालना तो इसी से कंपेयर करना, यही आंसर आना चाहिए। फिर इस बाइनरी को वापस तुमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो अभी हमने करके दिखाया था। सेकेंड क्वेश्चन 64 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, आंसर ये आएगा। फिर इस बाइनरी को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो वापस आंसर यही आना चाहिए।
आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? फिर उसके बाद 80। तो तुम्हारा काम 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन करने का है। द कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तुम कहो तो हम कोई क्वेश्चन इसमें से करवा दें, वैसे हमने 4 कॉम्बिनेशंस करा दिए हैं। एक को डेसिमल को बाइनरी, फिर बाइनरी को डेसिमल, फिर डेसिमल को बाइनरी एंड बाइनरी को डेसिमल। ठीक, अब हम तुमको एक चीज और बताने जा रहे हैं। कभी कभी सम टाइम व्हाट हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली, एक मिनट, आपको डायरेक्टली एक बाइनरी नंबर दे दिया जाएगा ऐसे, और नीचे बेस 2 होगा। हमेशा जब भी आपको कन्वर्जन्स दिए जाएंगे तो बेस सिस्टम जरूर यूज किया जाएगा। विदाउट बेस सिस्टम नो कन्वर्जन इज देयर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अंडरस्टैंड? बाइनरी को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इट्स वेरी इजी। आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर को थोड़ा थोड़ा गैप से लिख दीजिए। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ हो सकता है किसी की मैथ वीक हो, ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा दूर पे लिख दिया। अब एलएसबी से एमएसबी की तरफ 55 है। 0 1 2 3 4 अरे 85 है 5 आंसर। 6। मेरा 83 आया। अंडरस्टैंड? 55 2 की पावर 6 बस मेरी इंटू 1। मैथ्स बेकार। कोई एक आदमी सोच लो 55 2 की पावर 6 कितनी होती है? 2 की 64 पावर 5 64 इंटू 0। 30 2 की पावर 16 4 इंटू 1। मेरी सही है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज। 2 की पावर 3 इंटू 0, ये वाला हमने लिखा है। अब ये वाले के लिए प्लस 2 की पावर ये वाला मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस एंड 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 0 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। जी 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 2 की पावर 0 इंटू, अंडरस्टैंड? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक 64 ऐसा आदमी मल्टीप्लाई कर रहा है जिसकी मैथ थोड़ा वीक है। मेरी मैथ वीक। हाँ, हम अपनी तरफ से ये हो गए 6। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64। 83 आएगा। से यस और नो? दादा मैंने 83 ये Yes, 0 हो sir. जाएगा। हम बहुत फास्ट भी चल सकते हैं, लेकिन चलना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि सब लोगों की समझ में आ जाए। 2 की पावर 4 इंटू 1। 16 16 अब ये करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 0 ही आएगा। इसके लिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 1 इंटू 2 2 प्लस प्लस 1 यहां पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 1 1 इंटू 1 1। तो कैलकुलेशन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कैलकुलेशन। ठीक है? तो अब अगर हम देखें तो इनको हमें ऐड करना है। 64 और 19। हाँ 90 यस। बेस क्या होगा इसका? सर 10 होगा। 10 10 10 10। गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट।
Rudrakshi is also replying. Okay, very good. So this is done. अब जो next level आता है हमारा, वो आता है आपका decimal fractional to binary. What is this new thing? Okay, I think आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए. आज फर्स्ट डे है, मैं बहुत ज्यादा लेंथी क्लास नहीं लेना चाह रहा हूं. You just do the practice on this. In the next class that will be held on day after tomorrow. In the day after tomorrow, अभी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए इन पर. ये मत सोचिए कि दे आर इजी क्वेश्चन. आप वो चीज नहीं देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं. तो सिर्फ आप उतना कीजिए जितना मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं. Don't think it is easy or tough. That I will take care. सिर्फ आप ये पूरा पोर्शन इतना करिए और करने के बाद आप इसे हमें भेजिएगा. Okay, so I want to end this session. You can, okay, if you want, you can take the. Just a moment. Someone is sir इसमें और ठीक है, देख लेंगे यार. Don't worry. Okay. 67. Okay. Now, just do you want to ask any question? My class is over. I have ended the session. Ammar RN038. Do you have Yes, any sir. query? नहीं sir, सर मेरे को उससे पूछना है. क्या पूछना है? आप पर्सनली पूछ सकते हैं फोन वगैरह करके. ठीक है. Yes. जहरा तकी. Do you have any problem? No, sir. ठीक है. डिसकनेक्शन कनेक्शन सिर्फ इस वजह से होता है कि अगर हमारा कनेक्शन वीक हो. अब देखो मेरा एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ. नो सर. हर्ष इज सेइंग नो. सर गनी और उसको चेक करिए, ऐसा लग रहा है सो गए सब. गनी इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टूडेंट. Yes, sir. ठीक है. गजनफर इज ऑल्सो वेरी गुड स्टूडेंट एंड अली. बट ठीक है. हाँ गनी आर यू देयर? Yes, sir. नहीं गनी आर यू देयर? अरे गनी जस्ट वन सेकेंड. एक्चुअली आई Yes, जस्ट sir. Sir है.